Yeah, hello dear students. Today in this class we will discuss how to calculate p pi, and p pi d pi bonds. So this is our today's topic: calculation of calculation of p pi bond and p pi d pi bond. So for this purpose we'll take one example. ठीक है, हम एक example से start करते हैं. For example, we have one SO3 molecule. Okay, so this is the SO3 molecule. So आपको इस वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको हर एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए. ओके, so SO3, what is this, how to draw structure of this SO3? First draw one sulfur atom, then attach one oxygen by double bond, then another oxygen by double bond, and then another oxygen by one more double bond. Okay, now hybridization of this sulfur is sp2. This hybridization is sp2. Okay, then what is electronic configuration of sulfur? The electronic configuration of sulfur I am writing here. The electronic configuration of sulfur is 3s2 3p4, and electronic configuration of oxygen is 2s2 2p4. So this is electronic configuration of sulfur. First I am drawing here s orbital. This is 3s orbital and this is 3p orbital. Okay. So this is electronic configuration in ground state. This is ground state electronic configuration. So this is what this is, ground state electronic configuration. Okay, so now I am writing excited state electronic configuration of this sulfur. So in excited state electronic configuration of sulfur, again this is one s orbital, these three are p orbitals, and sulfur belong to third period. Therefore, d subshell also involved. This is s or s subshell, this is p subshell, and this is d subshell. Now, what will happen here in excited state? This electron, okay, this is 3s. Okay, two electrons are there in 3s. So now this one electron and this one electron. Okay, so paired electron, they will get excited to higher energy level. So after excitation, electronic configuration will become, okay, one electron in S, this one electron excited to higher electronic state, then this one electron is also excited to this D state. Okay, so now this is excited state electronic configuration of this sulfur. Now what is hybridization here? Hybridization is sp2. So now this is one s orbital and this is one p orbital. So how many p orbitals are involved here? Two p orbitals and one s orbital. So this one s orbital and two p orbitals are involved in hybridization. So this is sp2 hybridization. Okay, now here I am drawing how many sp2 orbitals are there? 1, 2 and 3. So these are 3 sp2 hybrid orbitals. ओके, नाउ अब बचा क्या क्या यहाँ पर? एक p ऑर्बिटल बचा और ये दो d ऑर्बिटल्स बच गए. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक तो p ऑर्बिटल बचा और दो क्या है? d ऑर्बिटल्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? p में एक इलेक्ट्रॉन है और d में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक. ओके, तो नाउ अब क्या करना है आपको? अब आएगा ऑक्सीजन. हाँ, कितने ऑक्सीजन आइटम्स है यहाँ पर? एक, दो और तीन ऑक्सीजन आइटम्स है. ओके, so now these three oxygens will bond with these three sp2 hybrid orbitals. Okay, now अब बचा क्या यहाँ पर? एक तो हमारे पास बचा p ऑर्बिटल, एक क्या बचा? दो क्या बचा हमारे पास? d ऑर्बिटल. अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4. सो 1 2 3 एंड 4. अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल है क्या? ऑक्सीजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है. सो देयर इज नो एनी डी ऑर्बिटल. ऑक्सीजन के पास क्या है? सिर्फ ओनली पी ऑर्बिटल्स आर देयर. क्या है ऑक्सीजन के पास? सिर्फ पी ऑर्बिटल. बट अब ये वाला जो सल्फर है, ओके, इसका ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल. सो पी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड पी ऑर्बिटल ऑफ oxygen. Now this is d orbital of sulfur. So this is
d ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास कौन से ऑर्बिटल है? ऑक्सीजन के पास सिर्फ p ऑर्बिटल्स है, तो ये दोनों तो क्या है, d ऑर्बिटल्स है, तो ये बचे हुए दो बॉन्ड क्या होंगे, p पाई p सॉरी p पाई d पाई, और ये भी क्या होगा, p पाई d पाई। तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास, s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o। अब देखो ये तो तीन क्या है, ये तो तीन है सिग्मा बॉन्ड्स, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड। फिर हमने क्या किया, ये जो एक बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बना, पी पाई बॉन्ड। सो इस डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक तो होता है पाई बॉन्ड। सो अब इस डबल बॉन्ड में क्या क्या बचे यहाँ पर, ये तो बॉन्ड बना पी पाई डी पाई, और ये दोनों तो क्या बने, पी पाई डी पाई, सॉरी इसको लिखो पी पाई, और ये जो दो बचे ये क्या बना, पी पाई डी पाई, एंड ये भी क्या बना, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये किसके लिए था, ये था SO3 के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं हम, NO2 का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो NO2 में क्या होता है, नाइट्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू सेकंड पीरियड, ओके। अब देखो नाइट्रो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, N डबल बॉन्ड O एंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो इस डबल बॉन्ड में क्या 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 होगा, एक तो होगा पाई बॉन्ड और एक तो होगा कौन सा, एक होगा पाई बॉन्ड और एक होगा सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है, अब ये पी पाई होगा, पी पाई डी पाई होगा। अब देखो बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल डी सबशेल होता ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ कौन सा सबशेल होता है, पी सबशेल होता है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पी पाई बॉन्ड, ओके। अभी देखो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PO4 3- का, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज PO4 3-। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, देखो ये तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस होगा सेंट्रल मेटल आइटम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फास्फोरस ड्रॉ करूँ, कितने ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन आइटम से, तो एक ऑक्सीजन आइटम को तो क्या करूँ, डबल बॉन्ड से अटैच करूँ। अब कितने बचे, 3 ऑक्सीजन आइटम्स बचे, तो बचे हुए 3 को क्या करूँ, सिंगल बॉन्ड से अटैच करो। अब चार्ज कितना है इसके ऊपर, -3 चार्ज है, तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस, यहाँ पर लिखा माइनस और यहाँ पर लिखा माइनस। ये तो क्या हुआ स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3-। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, देखो स्टीरिक नंबर क्या है इसका, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और चार सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, तो स्टीरिक नंबर कितना होगा, 4 होगा स्टीरिक नंबर इसका, ओके। तो 4 स्टीरिक नंबर मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 3p and 1s, that is 4। so this is the hybridization of this PO4 3-। अब क्या करो, यहाँ पे फिर से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो 3s2 और 3p3। आप देखो यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया S सब शेल, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने P सब शेल, और यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, D सब शेल। अब देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, P में कितने इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन से, और ये क्या है D। अब ये तो वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करता हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में ये जो S सब शेल, S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, D में चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और कितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बना sp3, ओके। अब क्या बचा इसके पास, इसके पास बचा एक प्योर d ऑर्बिटल। तो ये वाला यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ओके। अब ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ p सबशेल होता है, ओके, d नहीं होता। तो अब ये एक जो पाई बॉन्ड बचा, ये फास्फोरस के पास तो कौन सा है, d है, बट ऑक्सीजन के पास कौन सा है, p है। तो ये बचा हुआ, तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। ओके, दिस इज अबाउट PO4 3-। अब क्या करते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, ओके। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया H2SO4। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, वो सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है, सल्फर है। तो पहले ड्रॉ करो यहाँ पे सल्फर, कितने ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन से,
तो क्या करो यहाँ पे दो ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से अटैच करो। अब बचा क्या, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बच गए। यहाँ पे एक OH ड्रॉ करो और यहाँ पर एक OH ड्रॉ करो। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। H डबल बॉन्ड कंटेन वन पाई बॉन्ड। ओके, हाँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फिर से, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है सल्फर का, देखो सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और चार सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन आगे ना आएगा sp3। अब देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सल्फर होता है 3s2 3p4। अब यहाँ और इसमें 3db वैकेंट 3db होता है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ये s कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन से, और d क्या है, d है वैकेंट। ओके, ये क्या है 3p और ये क्या है 3d। अब देखो ये तो क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ करो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज दिया। अब देखो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तीन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये क्या बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब बचे कितने पाई बॉन्ड्स, देखो यहाँ पर कितने अब देखो sp3 हाइब्रिडेशन का क्या मतलब है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे, चार ऑक्सीजन एटम्स है। तो एक ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम और चार ऑक्सीजन एटम। चार ऑक्सीजन एटम्स तो क्या होंगे, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब बचे दो, ये 3d है। ओके, मतलब दो पाई बॉन्ड्स बचे। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल होता है, बट अब सल्फर के पास कौन से बचे, d बचे। तो ये बचे हुए दो बॉन्ड्स कौन से होंगे, p पाई d पाई, और ये भी कौन सा होगा, p पाई d पाई। ओके, आ गया समझ में। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ मैं कैसे याद करने से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था SO3। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। तो देखो दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, मतलब एक p ऑर्बिटल बचा है इसमें। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है, s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o। कितने p ऑर्बिटल्स बचे, एक p ऑर्बिटल बचा, तो एक बॉन्ड तो कौन सा होगा इसमें, p पाई बॉन्ड होगा। अब p ऑर्बिटल्स तो खत्म हो गए, तो बचे हुए दो बॉन्ड्स कौन से होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये कौन सा होगा, p पाई d पाई, और ये भी कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा डिस्कस किया था हमने, PO4 3 माइनस का। ओके, ये PO4 3 माइनस, इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3 हाइब्रिडेशन आता है। कितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में, तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें इसके पास कोई p ऑर्बिटल बचा क्या, इसके पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा। तो ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास ऑलवेज कौन सा होगा, p पाई, और d पाई किसका, फास्फोरस का। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा डिस्कस किया था हमने, NO2 में तो दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग करते, तो उसका कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो इस H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कोई p ऑर्बिटल बचा क्या यहाँ पर, कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा, तो ये दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, p पाई d पाई होंगे, और ये भी कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन से सीधे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, sp2 मतलब एक p ऑर्बिटल बचा, तो एक p पाई बॉन्ड होगा, फिर बचे हुए दो बॉन्ड p पाई d पाई होंगे। अगर sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है, इसमें क्या तीनों के तीनों p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें कोई भी p पाई बॉन्ड नहीं होगा, इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स कौन से होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम p पाई और p पाई d पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ